आज हम लोग पढ़ेंगे टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू आरबीआई एक्ट 1935 which is a important portion of general banking. Especially it is important for all examinations including GBO examinations, CBO examinations, even in RBI grade B examinations. And you have to go through it. Although it is a very comprehensive act and a number of things are there, those who have been studying either in UPSC, UPPSC, or any state level exams in before we go through the background of RBI Act, we have to go through from where it came from. All of you might have been known about regulating act. This was incorporated to regulating act. This is not a separate act of RBI. The RBI was established under that regulating act, but specific act of RBI is called in 1935. RBI Act 1935. We have to go through we will study through the questions and also discuss some important sections. Do not study too much of RBI Act, especially for CBO or GBO, because you are not going to attend the bank promotion exams. It is the simple, you have to go with the simple because you need to go through what is needed, uh, just and view that you are aware of these acts. You don't need to be very knowledgeable just regarding that act, because it is not it won't benefit you in any way. Okay, let's start and go to our next page. Before we go through the study, I will advise and I request you to encourage the work, to encourage the materials which I am preparing for, even after having a job uh, in treasury, and I have to arrange my timeline in such a way so that I can give some time to prepare such materials which can benefit you. Therefore, you are requested to like, subscribe, and share this YouTube channel, as well as Financial Awareness for Bank Exams is a group which is also run by Exam Zone 2%. Uh, that you also requested to go and encourage by adding the number of members, sharing with your friends, sharing with your uh, colleagues which you are also preparing if you are working somewhere. It would benefit. I am not charging any fee and never will be charged on the exams on 247, never will charge any fee for such videos. Okay, we will continue it. Just start. Okay, we are going to the next stage. Before after end of this video, we will be doing some important questions in sense which are really important and may appear in the examinations. We won't do such questions which are not relevant and okay. Before we go through, we will be studying this and discussing this. RBI established in April 1, 1935 under RBI Act, recommendation on John Milton Young Commission. ये आपको याद रखना है कि किस कमीशन के बेस पे ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अर्लियर. विच कमीशन which commission was behind the establishment of RBI? So John Milton Young Commission was there behind the establishment of RBI. Okay. Um, who you know that SBI is a bank which is older than RBI. हो सकता है आप लोगों में से ज्यादा लोगों को नहीं पता हो, बट एसबीआई आरबीआई से पुराना बैंक है. इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था. हालांकि एसबीआई ही नहीं, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो आरबीआई से पुराने हैं. आरबीआई तो 1935 में आया है and there were a number of banks which started functioning in 1800 and onwards. Okay, so there with the name of RBI you won't get confused that it is very old and
RBI is very much young as compared to other banks functioning in India. Then sometimes you might have get confused if it comes in examination. You have to know that RBI, before the establishment of RBI, Imperial Bank of India, which is now SBI, was conducting the central bank's functions. अच्छा, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, ठीक है, वो आरबीआई के फंक्शन कर रहा था, आरबीआई को इस्टेब्लिश होने के बाद एसबीआई वाज अंडर आरबीआई. हियर इज initially SBI was there and RBI was not there. Later SBI came under RBI and became as an associate. Later the SBI established under SBI Act. Okay, this was not subsidiary of RBI now. Okay, that's why nationalized bank is a different thing. SBI, the SBI is also nationalized because the capital of government is there, but the act is different. Okay. At the time of establish थर्ड पॉइंट हम देखें, एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एसबीआई का पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपीज है. पेड अप कैपिटल मतलब उस समय इतने कैपिटल उसके पास थी और उसे इस्टेब्लिश किया गया और इसमें अभी कोई चेंज भी नहीं किया गया है. ठीक है. ऑथराइज्ड कैपिटल इज ए डिफरेंट थिंग. ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितना आप कहीं से भी ला सकते हो, जुटा सकते हो, आपका उतना कैपिटल. बट एट प्रेजेंट व्हाट इज द actual input, what is actual capital available with a company, that is the paid up capital. Okay. Next, RBI is managed by a central board of directors. Note this point. Central board of directors आपको पता ही होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नर होते हैं, ठीक है, ड्यूटी गवर्नर्स होते हैं, तो ये सब मैनेज करते हैं और इनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. अब हम आते हैं इसमें. द एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन मार्च 6th 1934. द मेजर फंक्शंस ऑफ आरबीआई वाज इंक्लूडेड एज. जब आरबीआई एक्ट बनाया गया 1934 में, तो द मेजर फंक्शंस उसके जो डिसाइड किए गए, विच वर first, to issue bank notes, means RBI has given sole and privilege to issue bank notes. Second, for keeping reserves for securing monetary stability in India. मॉनेटरी स्टेबिलिटी को रखने के लिए इंडिया में कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन और वैल्यू ऑफ करेंसी ये सब स्टेबल हो, ये भी फंक्शन इसको दिया गया. To operate the currency and credit system of the country, which is also initially, by that time we were not free and the freedom was not obtained at all. Even though the to operate the currency and credit system was as a function given to RBI, and RBI is still continuing these functions which were stated in the act. Even no major changes have been still done in RBI act, except some changes is recently to be made for the issuing digital currency notes, which are specifically RBI is issuing only paper currency notes. Okay. It also acts as a banker to government, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट तो होता ही है, ठीक है, हमेशा है. आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट ही है. एंड बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंकर है. अच्छा, वन मोर थिंग, not only the RBI is the banker to government, even it is up to the government from which bank the government wants to avail the services. ठीक है, बिकॉज जनरल बैंकिंग सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई. अभी आरबीआई सुकन्या समृद्धि नहीं कर सकता, खोल सकते. आरबीआई का ऐसा कोई जनरल बैंकिंग ऑफिस नहीं है जहां पे आप ट्रांजेक्शन करें, तो वो इसलिए गवर्नमेंट के फंक्शंस करते हैं. एंड अनदर थिंग्स आर डन बाय द अदर बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, इवन प्राइवेट बैंक्स आर आल्सो डूइंग दिस functions.
Okay. Further, we will be going through more RBI Act important sections. We will discuss the important sections of RBI, and ये this is only indicative list है, ठीक है. This is only indicative list. Why? Why? Because there are a number of sections, and you need not go through every sections. They are not important at all. That is the different thing. Then do not study too much of the sections. The sections are sometimes section 35 is also important. Inspection of banks and ombudsman and directions are there, which you may study, but it is only asked about one or two times, not many more times. Okay. Okay. We will be going through these points now. सेक्शन 2E. ओके. आप इसको सेक्शन 2E न पढ़ के ओनली सेक्शन 2 पढ़े तो बेटर है. सेक्शन 2 से इट इज एक्चुअली शेड्यूल 2, सेकंड शेड्यूल. क्या है? जब भी कोई व्हेन अ बैंक इज एस्टैब्लिश्ड एंड रजिस्टर्ड विद आरबीआई, it is the responsibility of RBI to classify the bank under which category it falls. Then, if it is registered under Section 2E of the RBI Act, then it is called as a scheduled bank. Okay? अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी क्या लिखा हुआ है आप पढ़ोगे ना, वर्क एक्सपीरियंस इन अ शेड्यूल्ड बैंक. शेड्यूल्ड बैंक मीन्स वो बैंक आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूडेड है. ओके. नाउ वी विल गो ऑन सेक्शन 17. सेक्शन 17 क्या बोलता है कि कौन कौन से बिजनेस है जो आरबीआई करेगा. व्हाट defines the various types of the business which RBI may transact, which include acceptance of deposit without interest from central government, any other person, institution purchase, sell securities, rediscount bills, promissory notes, etc. Means सेक्शन 17 बताता है कि आरबीआई विदाउट इंटरेस्ट वाले डिपॉजिट भी गवर्नमेंट से ले सकता है. दैट इज सेक्शन 17. एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन को परचेज, सेल, बिल ऑफ प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज और सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शंस की गाइडलाइंस किस तरह से करना है वो आरबीआई के ऊपर है, आरबीआई डिसाइड करेगा. नाउ वी विल कम टू सेक्शन 22. It is important section, under which section RBI is given to sole right to issue bank notes. Okay. तो ये सेक्शन 22 में है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आरबीआई कैन नॉट इशू ₹1 नोट. तो ₹1 नोट के लिए सेक्शन 22 लगता नहीं है, नॉट अप्लीकेबल फॉर. सेक्शन 22 इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ₹2 नोट. ओके. Now we will going through section 24. What it states? Section 24 actually states about the denomination of notes which can be issued by RBI or may be discontinued by RBI. तो डिनोमिनेशन इसमें जो सेक्शन 24 में है, 24 में जो है वो डिनोमिनेशन इसमें ₹2 से लेके 10,000 रुपीज तक के नोट है. Even RBI can issue more than these denominations up to RBI as per directions of central government as needed. ठीक है. अच्छा, इसमें 2000 का नोट नहीं है और 1000 वाला भी डिसकंटिन्यू हो गया. इसमें 2000 वाला भी लिख लो आप, 2000. ओके. आरबीआई एक्ट में 2000 रुपीज का डिनोमिनेशन भी इंक्लूड हो गया. अच्छा, ₹2 and 5 डिसकंटिन्यू का मतलब 2 and 5 can be used in market or for transaction, but their printing is stopped.
2 रुपए और 5 रुपए की नोट की प्रिंटिंग बंद हुई है, उनका वैल्यू नहीं खत्म किया गया है, वो अभी भी लीगल टेंडर हैं और ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। आप देखो कि बहुत सारे लोग बैंक में 5 की नई गड्डी और 1 की नई गड्डी मांगने आते हैं। जनरली अभी 1 वाला भी प्रिंटिंग बंद है, ठीक है, वो कॉइन्स ही मिलता है आपको। ओके, तो अगर आप लोग बैंक में जाएं और मांगे तो आप ये जान लो कि बैंक के पास खुद नहीं होता है 1 2 5 का। इवन एसबीआई के चेस्ट में नहीं रहता। कॉइन्स मिल जाएगा, आप जितना कॉइन्स लो मिल जाएगा, बट इट इज रियल, हाँ, नहीं मिलता, प्रिंट ही नहीं हो रहा है ना। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द सेक्शन 28। 28 क्या है ये पढ़ लो आप, कि इसमें ये लिखा है आरबीआई कैन फ्रेम द रूल्स फॉर रिपेंडिंग वैल्यू ऑफ म्यूटिलेटेड एंड स्वाइल्ड नोट्स। ओके, स्वाइल्ड नोट्स। अच्छा देखो, एज अ मैटर ऑफ ग्रेस, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपका वो राइट नहीं है। हालांकि स्वाइल्ड नोट्स के केस में तो राइट है, बट म्यूटिलेटेड के केस में आप उसको राइट नहीं कर सकते, आपको चेंज करने का। तो आरबीआई सेक्शन 28 के थ्रू नोट रिफंड के रूल्स बनाता है। सेक्शन 29, सेक्शन 29 में ये क्लियर कट लिखा गया है कि बैंक नोट शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी। मतलब जो बैंक नोट छपाई होती है आरबीआई गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज नॉट गोइंग, इवन आरबीआई कैन नॉट पे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट द स्टाम्प ड्यूटी, मींस एग्जम्पशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी। ओके, एज क्योंकि प्रॉमिसरी नोट जो होता है ना, प्रॉमिसरी नोट तो अभी जो बैंक में नहीं है तो उनको शायद नहीं पता होगा। ऐसे प्रॉमिसरी नोट मतलब जो आप किसी को उधार देते हो उसको एक नोटरी जैसा बनवा करके यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट साइन करा लेना, ठीक है। तो वो स्टैम्प पे बनता है, इट इज मेड ऑन स्टैम्प, ठीक है। हियर समटाइम्स नोटरी साइंस, ओके, एंड हियर पार्टी व्हिच इज टेकिंग क्रेडिट फ्रॉम यू साइंस एंड यू आल्सो साइन, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। अभी अगर आप किसी को पैसा देते हो, उधार देते हो, अगर ज्यादा अमाउंट दे रहे हो, तो बेटर यू टेक अ प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम हिम, दैट ही विल रिटर्न दैट मनी और ही विल हॉनर इस दिस प्रॉमिसरी नोट। ओके, तो इसमें यह है कि बैंक का जो नोट है ना, दैट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड इट नीड्स टू पे सम स्टाम्प ड्यूटी, बट अंडर दिस एक्ट it has been clearly stated that the RBI, that is in regarding the bank note, it will be exempted from stamp duty for all type of consideration. Okay, for all type of consideration. Okay, next page we will be going. Next page is it's a little bit highly zoomed. Okay, we will continue now. Next page is, and that important section is section 31. Section 31 prohibits issue of note payable to bearer, means अब इसको तो छोड़ दो, ये दैट इज सम टेक्निकल मीन्स एक्सप्रेस लीगली एक्सप्लेन टर्म, आई विल explain you in layman, means it clearly says that no man will can issue a bank note. आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना ठप्पा मुहर लगा के और बता दो कि ये 10 रुपया है और 10 लोगों को कह दो कि हाँ ठीक है, ये जिसके पास रहेगा मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तो दैट विल बी स्टार्ट वर्किंग एज ए नोट, करेंसी नोट। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपने तरफ से नोट नहीं छाप सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, द सेम नेट यू कैन इशू, क्या डिफरेंस है, वो 10 रुपए का एग्जैक्टली सेम टू सेम नोट मैं आरबीआई नहीं, मैं एग्जाम जोन की तरफ से छाप देता हूँ, एग्जाम जोन 10 रुपए, एंड इफ यू विल कम टू परचेस समवेयर, he knows me and he will honor for 10 rupees. Okay, nobody can do, ये नहीं करना है, ये ऑफेंस है। ओके, एनी टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा कुछ भी आप फॉर्म में पेएबल टू बियरर नहीं इशू कर सकते हो। जैसे चेक है ना, चेक, चेक इज ए डिफरेंस थिंग, चेक उसमें नहीं आता नोट में। ओके, चलो, चेक तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आता है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज 33, सेक्शन 33। सेक्शन 33 इज assets of issue department of RBI shall consist of gold coins, gold bullion, fund and not at any time be less than 200 crore, 200 crores.
ओके, विच गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियंस नॉट लेस देन 115 करोड़। अच्छा, ये एक्ट में था और सेम टू सेम ऐसा चल रहा है। वो क्या था मैं बताता हूँ। आरबीआई के जो एसेट होंगे, अभी आपने देखा होगा ना, बिमल जालान की कमेटी बनी थी और उन्होंने जो पैसा आरबीआई का था वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया था। आरबीआई के पास इनकम ज्यादा थी, एसेट्स भी थे, तो उन्होंने, उसमें क्या है, एक्ट में लिखा है कि आरबीआई के पास एनी टाइम 200 करोड़ से कम कोई असेट्स नहीं होने चाहिए। सेकंड क्या है, अभी तो बहुत ज्यादा है बट इट इज इन एक्ट, बाय दैट टाइम 200 करोड़ बहुत बड़ी बात थी, 200 करोड़, नॉट नाउ, बट तभी रुपये की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी ना। ओके, अभी तो रुपया 100 टच करेगा, क्या करेगा, एवरी डे रेट सस्पेंड होता है ट्रेजरी में, एवरी सेकंड थर्ड डे, तो क्या होगा कुछ नहीं पता, ये मोदी बाबा क्या करेंगे। चलो, दैट इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वी शुडंट गो इन। बाय द वे, अब समझाता हूँ, 200 करोड़ से नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ विच 150 करोड़ विल बी इन गोल्ड। अच्छा, ये बोलो, ये गोल्ड में क्यों बोला है, 200 करोड़ रुपया ही रख ले तो नहीं, क्योंकि गोल्ड को क्या है ना, गोल्ड को आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हो, नो बडी विल टेक योर मनी। वो 100 रुपया तो आप प्रिंट करके रख लो ना, 200 करोड़ क्यों, वो फिर 2000 करोड़, यू कीप 2000 or 2 lakhs crore in the form of printed notes, no, the assets which are universally accepted is presently gold bullions, गोल्ड बुलियन भी गोल्ड ही है, ठीक है। ओके, वो जो है नॉट लेस देन 115 करोड़ होना चाहिए, यहाँ 150 लिख दिया क्या, 115 करोड़। ओके, और प्रेजेंटली तो बहुत ज्यादा है, 115 इज नथिंग फॉर आरबीआई, 200 करोड़, इवन 200 करोड़ इज नथिंग। और चाइना का तो छोड़ दो, चाइना के पास तो इतना डॉलर है, इवन ही परचेजेज इफ gold of all over the world, then also all the gold will be exhausted, still the China will be left with a number of a huge amount of dollars. Okay, सेक्शन 42 इज द कैश रिजर्व रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो ये सेक्शन 42 है जो कैश रिजर्व रेशियो का, वो आरबीआई में है। अभी कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है, ये बीआर एक्ट में है आरबीआई में, तो ये बताओ कैश रिजर्व रेशियो, तो ये बैंक्स क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जितना अमाउंट एनडीटीएल का बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं, the amount of cash and cash equivalents, not the cash, you can do high quality liquid assets, especially cash in the cash form, okay, is put with RBI, इसीलिए इसका कैश रिजर्व रेशियो नाम है, क्योंकि ये कैश में रखा जाता है। ओके, तो किसके पास रखते हैं, इट इज केप्ट विद आरबीआई, दैट्स व्हाई इट विल कम इन आरबीआई एक्ट, इस तरह से याद कर लो, देन यू वोंट कंफ्यूज लेटर। सेक्शन 43 एम्पावर्स आरबीआई टू एड और डिलीट नेम्स ऑफ एनी बैंक, मतलब अगर किसी बैंक को सेकेंड शेड्यूल से हटाया जाएगा, ठीक है, सेकंड शेड्यूल से क्लासिफिकेशन उसका अनशेड्यूल्ड बैंक किया जाएगा, तो देन ये आरबीआई को पावर दी गई है, कब, सेक्शन 43 आरबीआई एक्ट में। ओके, ओके, सेक्शन 48 इज द एग्जम्पशन टू आरबीआई फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स, आरबीआई का एग्जम्पशन है इनकम टैक्स पे, कि आरबीआई कोई भी इनकम पे अपना इनकम टैक्स नहीं देगा। तो अगर ऑप्शन में ये आता है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी डज नॉट पे इनकम टैक्स, तो आरबीआई रहेगा, बैंक्स में बाकी सभी बैंक्स इनकम टैक्स पे करते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट पेज वी विल बी गोइंग थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चन इसमें टाइप करने में देखो मुझे टाइम नहीं है इतना, ठीक है, और मेरे पास टाइपिस्ट भी नहीं है। ओके, तो मुझे मटेरियल टाइप करने में ही बहुत टाइम लगता है, और मैं टाइपिस्ट भी नहीं हूँ, मैं सिंपल जैसे जनरल टाइपिंग सब करते हैं वैसा ही आता है मुझे, तो दैट्स वाई मैं क्वेश्चंस ऐसी में बताता हूँ, आप सुन लो उसको एंड यू नोट इट डाउन विद पेन एंड पेपर। ओके, तो हम ये कहते हैं, चलो, अंडर सेक्शन 49 ऑफ आरबीआई एक्ट, ठीक है, मैं 49 किस लिए बोला हूँ, ठीक है, मैं 49 इसलिए बोला हूँ क्योंकि 49 आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है, मैंने उसको इसमें नहीं कोट किया है, ठीक है।
अंडर सेक्शन 9 ऑफ 49 इज रिलेटेड टू, तो ये है बैंक रेट से। आरबीआई का सेक्शन 49 क्या करता है, वो बैंक रेट को बताता है। सेक्शन 49 इज बैंक रेट। ओके, ठीक। सेक्शन 2, व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई। तो ये अभी आपने पढ़ा है कि जब ये आरबीआई बना था 5 करोड़ हुआ था। आरबीआई स्टैब्लिश्ड इन 1935। ओके, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई एवरीवन नोस। ठीक है, नाउ वी विल सी दैट what is the highest denomination of banknote that RBI can issue? What is the highest denomination which RBI can issue? ये क्या है? That is 10,000। 10,000 का नोट है। ओके, which bank is known as lender of the last resort? तो वो आरबीआई है। ठीक है, now 1 minute now, SLR, SLR no, UCR, you come to know। ठीक है, what is the section, under which section, under which section cash reserve ratio is defined as? तो ये सेक्शन 42 है आरबीआई एक्ट का। ओके, दैट इज सेक्शन 42। नाउ कंट्रोल, कंट्रोल सर्विलांस भी करता है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस टू बैंक्स अंडर 35, section 35। okay, now which bank frames the rules for note refund? frames the rules for note refund, नोट रिफंड के लिए तो आरबीआई बनाता है, उसका सेक्शन अभी ऊपर हमने बताया है। ठीक है, सेकंड, बिफोर आरबीआई which bank was functioning as सेंट्रल बैंक इन इंडिया? ये था इंपीरियल बैंक, एसबीआई मत लिख देना। ठीक है, अगर इंपीरियल दिया हो तो इंपीरियल, इफ इंपीरियल नहीं दिया है देन एसबीआई। ओके, नाउ the last question comes, and this is also very much of importance, that depositor DEF is a facility. Okay, DEF is a facility which is which is which is comes under which section of RBI Act? ये डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, ये सेक्शन 26 है आरबीआई एक्ट का। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक इट kindly share, maximum if you share, maximum share, it will encourage me to prepare more videos, and better, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। You need not to worry at all, and prepare your accordingly yourself, and best of luck for your exam।
I hope so that you are enjoying these videos and you will do very good in the examinations. Better one thing I would like to say that focus on other subjects also. As a computer, that's one is English. At least one you practice, one reading comprehension you practice, at least one in a day. That's it will increase your speed. Although speed is important because there is sectional timing, then you have to do it. Okay, enough. You do not lag in something. And banking related news, which is a monthly banking awareness, that it is started, and for the April I have already uploaded. For the May, June, July will also be uploaded in within some days. But you also continue studying. You see, and PDF will also be shared. The PDF of this video is also be shared. Before that, you watch your video and okay. Enjoy your preparation. Thank you.